how are you all? We're going to start another chapter from Indian economy, that is environment. I think since childhood we are studying this chapter in our EVS initially, and then sometimes in sciences also. And here also it is taken because environment, why this chapter is included in Indian economy is because environment plays very important role in growth of any economy. Okay, how we will talk about that later. So first I am going to cover, in this video I am going to cover meaning and its functions. Environment का काम क्या है? पहले तो meaning क्या है? ठीक? Meaning, environment क्या है? आपके हिसाब से अगर environment को define करना हो तो क्या? I think हमारी सारी surroundings जो है हमारे आसपास वो सब environment ही है, right? हम कहते हैं environment spoil हो गया, क्या मतलब हमारी surroundings खराब हो गई, ठीक है? It could be air, water quality, right? ये सब soil quality, ये सब environment का part है, okay? So meaning में हम क्या करेंगे? Handouts में first question में आइए, और meaning को भी हमने फिर दो parts में divide कर दिया इसको environment को biotic and abiotic. So let's start with the meaning. It is defined as the total planetary, planet पर जितना भी total planetary inheritance and the totality of all resources. Okay? Total planetary inheritance मतलब planet से जो हमें inherited, do you know, जब हम यहाँ आए, humans जब इस planet पर आए तो सारा nature ही nature था. हमने आकर इसके ऊपर कब्जा कर लिया और उन्हें भगा दिया. Actually, हम इतने गंदे बुरे land tenant हैं जिसने landlord को ही परेशान कर दिया. In simple language, right? So it is a total planetary inheritance which we got it from nature. And totality of all the resources which we have. All resources means air is also a resource, water is a resource, minerals are the resources. ये सब मिलाकर हमें जो भी मिला that is part of environment. Okay, चलिए आगे study करें. It includes all the biotic and abiotic elements. So we say it includes all the biotic and abiotic factors. कौन से होते हैं हम पहले वैसे पढ़ चुके होंगे आप साइंस में भी. लिविंग जो होती हैं लिविंग एलिमेंट्स वो सब बायोटिक में आ जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ लिस्ट डाउन भी किया है. ऑल लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स जिनमें विच ब्रीथ, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, दे ऑल आर बायोटिक एलिमेंट्स. अबायोटिक कौन से हैं? विच इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड, रॉक, सनलाइट, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ अबायोटिक एलिमेंट्स. आपको ये पता होने चाहिए, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं. A study of the environment then calls for a study of the interrelationship between, और हमारा environment जो है that is the relationship between both, means both exists there. Okay, relationship between these biotic and abiotic components of the environment. I'm sure it is very simple. हमने कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं की. अब हम आते हैं इसके functions क्या है, इसका काम क्या है भाई इस environment का. क्या ये याद करने वाली चीज है? Why do we need surroundings, good surroundings when we say यार resources क्यों चाहिए? तो सबसे पहले देश में अगर production ज़्यादा चाहिए तो आपके पास resources भी ज़्यादा होने चाहिए. So environment supplies raw material to the producers. Am I right? Okay. दूसरा, हमारी good well-being के लिए, हमारी अच्छी health के लिए भी, health छोड़ो जिंदगी के लिए पहले तो living के लिए भी environment जरूरी है. Air and water के बिना we cannot survive. फूड के लिए भी जरूरी है, because what do we get food from? Where do we get food from? Now we are getting from factories packaged food, but basic food कहाँ से आता है? Environment से आता है. Land से हम निकालते हैं, grow करते हैं. So ये सब चाहिए. हम जब बहुत ज़्यादा stressed out होते हैं तो rejuvenation के लिए भी हम कहाँ जाते हैं? Nature में, hill stations पर, waterfall के पास, flowing rivers के पास. So they gives us, they assimilates our life. So they are, that's the function of environment. These all are the functions, maybe a little more. So let's reach to the book. Book में क्या है? Second question मैंने यहाँ से book में से NCERT से proper way में लिख दिया है. Number 1, it supplies resources. Okay? Supplies resources में मतलब दो तरह के resources हमें देता है, renewable and non-renewable. कौन से होते हैं renewable? जो renew होते रहते हैं अपने आप. कैसे? These are those which can be used without the possibility of the resources becoming depleted or exhausted.
वो खत्म नहीं होते। सन लाइट मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर भी थी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम, पेरेंट्स के टाइम, मेरे टाइम, बच्चों के टाइम, इट इज देयर. So they are renewable resources which cannot be exhausted. That is a continuous supply. Underline कर लीजिए, continuous supply of resources remains available. दो एग्जाम्पल क्या दिया हमने, ट्रीज इन द फॉरेस्ट. आपको पता है फॉरेस्ट में अपने आप ही ट्रीज ग्रो होते रहते हैं. ट्री से सीड बना, सीड गिरा, फिर ट्री बन गया, फिर सीड बना, फिर ट्री बन गया. इस तरह से उसकी फॉर्मेशन खुद ही होती रहती है. सो फिशेस इन द ओशन कभी खत्म नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली जनरेट बनती रहती है, प्रोड्यूस होती रहती है. देन कम्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दे आर ऑन द अदर साइड आर दोज व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड एंड एक्सटिंक्टेड. एक्सटिंक्शन हो सकती है, जैसे फ्यूल, कोल, ये सब एक्सटिंक्शन वाले हैं, नॉन रिन्यूएबल. दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन वंस इट इज यूज्ड. ऑलराइट. दूसरा एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट असिमिलेट्स वेस्ट. एक्चुअली जो सिस्टम था, जो अगर हम पीछे जाएं, हमारा जो पुराना सिस्टम होता था, उसमें ये प्लास्टिक और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान नहीं होते थे. ये तो हम जैसों की इंटेलिजेंस की वजह से आ गए और हमारा एनवायरनमेंट खराब हो गया. जबकि नेचर का रोल क्या था, नेचर में जैसे हमने वेजिटेबल्स काटी, नेचर से ली, बनाई, उसका जो वेजिटेबल वेस्ट है उसे हमने डंप किया, एक पिट किया, उसमें डंप किया, उसी से क्या बन गया, मैन्योर बन गई. और उसी से ही हमने वो फर्टाइल हो गई. एक तो सॉइल की क्वालिटी इंक्रीज अच्छी हो गई, हमारे पास फर्टिलिटी के लिए फर्टिलाइजर मिल गया और मैन्योर मिल गई, और फिर उसी को ही डालकर हमने दोबारा से खाना उगाया, फिर से हमने उस वेस्ट को बीच में. मतलब एनवायरनमेंट का फंक्शन था, जितना वेस्ट हम जनरेट करते थे और हमें दिमाग लगाकर करना चाहिए था, उसको एब्जॉर्ब करना. लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने अपनी अननेसेसरी डिजायर्स को पूरा करने के लिए, मतलब एक गिलास पानी भी पीना है तो प्लास्टिक के गिलासेस आ गए, प्लास्टिक की बॉटल्स आ गई, जिसकी वजह से अब प्लास्टिक कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम नेचर बिकॉज इट इज नॉट गिवन बाय नेचर. थिंग्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचर दे विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय नेचर, but things which are not generated or given by nature, what have we done, हमने उसे इतना कर दिया कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, और फिर कभी ओशन में जाते हैं, बहते हैं, कभी माउंटेन्स को खराब कर रहे हैं, कभी सॉइल अगर जला देते हैं, लोग सोचते हैं यहाँ से तो खत्म हुआ, तो ऊपर जाके एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है. सो एनवायरनमेंट का फंक्शन है सिमुलेट्स वेस्ट. द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज generates a lot of waste which is absorbed by the environment. Sustains life. हम सब की लाइफ के लिए एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है. Some basic necessities like sun, soil, water, air are part of environment. It sustains life by providing such essential elements. Provides aesthetic services. जैसे मैंने कहा हम घूमने जाते हैं, so environment includes land, forest, water bodies, rainfall, atmosphere, etc. People enjoy the scenic beauty of these elements like going to hill station. Such elements helps in improving quality of life. So this was all about meaning and functions of environment. Rest I will cover in the coming video. Bye bye. Take care.